Viewers, 41 years after Rakesh Sharma's space flight in 1984, India returns to space, this time with the private collaboration. We're going to give you a full overview of the Axiom Mission 4. The launch date is 10th of June 2025. The time will be 5:52 p.m. IST from the Kennedy Space Center in US. The launch vehicle is SpaceX Falcon 9, which is carrying the Crew Dragon C-213 Soyuz style vehicle. So who is Group Captain Shubhanshu Shukla? Well, born on the 10th of October in 1985 in Lucknow of Uttar Pradesh, he has been an IAF test pilot since 2006 with 2,000 plus of flying hours on Su-30, MiG-29, Dornier, AN-32 and other aircraft. He was selected for Indian Space Research Organization's Gaganyaan program in 2019. He completed his training in Russia and at NASA's Johnson Space Center. He's now serving as the pilot on Axiom Mission 4, India's first private flight astronaut. Shukla will be the first Indian on the International Space Station and the second Indian in space after Rakesh Sharma. This, remember, marks India's growth in the commercial space economy, contributing science to a multinational team. Now, before we go across to his parents who are joining us live on Times Now, let's play out this capsule on India's pride, Group Captain Shubhanshu Shukla. From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply, deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me. And it started out somewhere I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I've been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I'll be going. I was extremely excited to be here. I was very, very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. Shuk's his wisdom, the knowledge that he possesses. He could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technology. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla and I am the mission pilot for Axiom 4 mission. And joining me live on Times Now are Mr. Shambhu Dayal Shukla and Mrs. Asha Shukla, who are Group Captain Shubhanshu Shukla's parents. Good morning, नमस्कार आप दोनों को. Thank you very much हमारे साथ जुड़ने के लिए Times Now पर. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी मन में क्या चल रहा है. What are you both feeling today? Your son will be going to the International Space Station. Second Indian Rakesh Sharma के बाद कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें
मतलब इस पर गर्व है कि हमारा बच्चा जो है इसके मिशन के लिए जा रहा है, और इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और सभी मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद है कि ये मिशन अच्छी तरह पूरा हो रहा, और इसके हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा बच्चा उसके लिए मिशन में जा रहा है। आशा जी, मन में डर है थोड़ा थोड़ा? खुशी तो है पर थोड़ा थोड़ा मन में डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कल जा रहा है? माँ के हिसाब से पूछिए तो थोड़ा डर है, और देश के हिसाब से पूछिए तो बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। कोई ऐसा डर नहीं लग रहा, विशेष हमको कोई डर नहीं लग रहा। मुझे समझाइए, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बचपन से ही, क्योंकि वो राकेश शर्मा जी से इंस्पायर्ड थे, बस 1 साल बाद बॉर्न हुए थे। 1985 में वो उनकी पैदाइश है। 1984 में राकेश शर्मा गए थे फर्स्ट इंडियन टू बी इन स्पेस। कैसा था उनका बचपन? वो इंस्पायर्ड थे स्पेस से, स्पेस ट्रैवल से? नहीं, बचपन से तो जैसे बच्चे होते हैं, नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था, उसी तरह से जैसे सारे बच्चे होते हैं उसी तरह से पढ़ाई शुरू की थी, और धीरे धीरे पढ़ते चले। कोई बचपन में इस प्रकार की बात होती ही नहीं थी कि स्पेस में जाना है या एस्ट्रोनॉट बनना है। वो तो धीरे धीरे पढ़ाई की। पढ़ने में चूंकि ब्रिलियंट थे तो लगातार वो हाई स्कूल, इंटर के बाद उसका एनडीए में जो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद वो इतना सक्षम खुद हो गए कि अपना निर्णय लेने के लिए उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप वो अपना निर्णय लेने लगे जी। तो बाद में फिर हम लोगों ने भी उनके निर्णय में अपनी हामी भर दी। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। उसी हिसाब से उनका सब जगह होता चला गया जी। पहले एनडीए में सिलेक्शन हुआ, फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग की उन्होंने, उसके बाद एयरफोर्स से आने के बाद टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की। सब अपने आप ही वो सब करते रहे और सब में निकलते चले गए जी। उसके बाद सीधे से स्पेस वाला मिशन उनको मिल गया इसरो में आने के बाद जी। जी शंभू दयाल जी, उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, चाहे वो अमरीकी एस्ट्रोनॉट हैं, पोलैंड से हैं, हंगरी से हैं, सब उनको एक डिस्क्राइब कर रहे हैं एक शार्प एस्ट्रोनॉट की तरह। वो कह रहे हैं कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो हो सकता है 130 साल के हों, जितना नॉलेज उनके पास है। कैसे देखते हैं आप जब बेटे के बारे में इतनी अच्छी बातें बोले जा रही हैं, और कैसे जर्नी देखते हैं आप उनकी? नहीं, बच्चे के पास नॉलेज अच्छी है, और दूसरे उसमें जो भी उसने ट्रेनिंग की है फुलफिल मेहनत करके की है, पूरी लगन से की है जी। और पूरा उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब हमने जो ट्रेनिंग की है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह उसमें अपना पूरा सहयोग करता है हर तरीके से, सभी के साथ जितने उसके संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं, और सभी के साथ उसका जो है एक मिलकर टीम ऐसी बना लेता है जिससे सभी उसके कार्य से जो है प्रभावित रहते हैं, और वो भी सबका सहयोग पूरी तरह सहयोग लेता है और सहयोग देता है। कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आती। हम लोगों को तो बहुत ही मतलब उस पर जो है वो रहता है कि बच्चा जो है इतना नॉर्मली, जैसे हम कुछ टेंशन में भी हों तो उससे बात करने के बाद बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और कहीं नहीं महसूस करते हैं कि मतलब जो है वो किस मिशन पर जा रहा है या क्या उसको परेशानी है या कुछ। अपनी परेशानी नहीं बताता, हमारी ही परेशानी पूछकर उनको हल करता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और बड़ा अच्छा हम महसूस करते हैं कि ऐसा बेटा जो है हमारा है, जिससे हमें बड़ा रिलैक्स रहता है, कभी दिमागी टेंशन उसके बारे में नहीं रहती जी। आशा जी, उनकी पत्नी जो है उन्होंने बोला है कि उनका एक नेवर से डाई एटीट्यूड है। एक उनका जो एटीट्यूड है वो ये है कि गिव अप नहीं करना है, बस कीप स्विमिंग, चलते रहना है, काम करते रहना है, जितने भी चैलेंजेस आए। कैसे देखती हैं आप बेटे के सामने जो जो चैलेंजेस आए और जो अभी इतना बड़े मिशन पे जा रहे हैं, उसके बारे में वो कैसे हैंडल करेंगे? इतने सारे चैलेंजेस है, आपने तो उनको बचपन से लेके अभी तक देखा है। बचपन से जो देखा है वो उसकी वाइफ जो है वो सही कह रही है। वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छा जो भी चैलेंज सामने आता है उसको बहुत ही कुशलता से उसको जो है निर्वहन कर जाते हैं अच्छे से।
कोई भी आ जाए, कोई भी समस्या हो, उसके आगे वो सब अपने बहुत मुश्किलों बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से अपना हासिल कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। जी शंभू दयाल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपनी परेशानी नहीं बताता है, और हम जब बात करते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि वो परेशानी कभी थी। शायद बच्चों और पेरेंट्स का यही रिलेशनशिप होता है ना, बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स को दुख ना पहुंचे, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने दुख छुपा लें, बस बच्चों को सुख दें। नहीं तो उसका ये हमेशा रहता, देखिए दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है, ये तो हम कहेंगे। पूरे बच्चों से, नॉर्मली बच्चों से 50% बच्चों से तो अलग, क्योंकि उसका कभी किसी प्रकार की कोई कभी डिमांड, छोटे पर भी उसकी कोई कभी डिमांड नहीं रहती थी। पढ़ने में पूरा ध्यान लगाता था, खेलने में भी अच्छा था, तो वो अपने पूरे काम करता था। उसमें कहीं पर ये दिक्कत नहीं आती थी कि उसको कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिली है तो उसके लिए वो इनॉय हो, नाराज़ हो या किसी प्रकार का वो गुस्सा करे, ऐसा कुछ नहीं करता था। एक बार मना कर देने पर ही साफ मान जाता था, उसके बारे में कभी दोबारा वो उसका जिक्र भी नहीं करता था। और हमेशा जो भी काम उसका होता था, जैसे पहले होता था, आज भी जिस मिशन में वो हाथ डालता है और उसकी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से उसका पूरा होता है। और ये मिशन भी उसी के जो है कृपा से जो है बहुत अच्छी तरह उसको मिला है और पूरा होगा उसका। ये बहुत बड़ा मिशन है, रहती हैं देशवासियों की, सबकी दुआएं हैं जी, बिल्कुल। ईश्वर की प्रार्थना हम लोग करते हैं, इसीलिए कि उसको जो है पूरे तरह आशीर्वाद मिले, और ये सब उसके साथ हैं तो मिशन भी बहुत अच्छी तरह पूरा होगा। बिल्कुल, ईश्वर, देश सब खड़े हैं आज शुभांशु शुक्ला जी के साथ। बट आशा जी, ये बहुत बड़ा मिशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ना सिर्फ आपकी इंडिविजुअली, पूरे देश की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कंधों पर अपने, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ, देश ने इतना भरोसा दिखाया है मेरे ऊपर, तो मुझे ये मिशन सक्सेसफुल करना है। हाँ, भरोसा तो है ही देश, मतलब नहीं तो वो सबके भरोसे पे खरा उतरेगा, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। अच्छा ही करेगा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। जी, माँ का विश्वास। आशा जी, जैसे आपने मेरे पहले जवाब में अपने बोला था कि माँ से पूछेंगे तो थोड़ा तो मन में रहेगा, बट एक माँ का विश्वास भी होता है। एंड द एंटायर कंट्री व्यूअर्स इज स्टैंडिंग स्ट्रांगली बाय द साइड ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शंभू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब क्योंकि ये मिशन कल है, लॉन्च है, आपकी बात हुई उनसे? लास्ट कब बात हुई, क्या बोला उन्होंने? अभी कल ही बात हुई थी और उसने बताया कि मिशन का जो है बिल्कुल सब सही चल रहा, टाइमिंग सब सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल परफेक्ट उसने कॉन्फिडेंस है उसको हम, और हमने भी उसको अपना आशीर्वाद दिया, ईश्वर से प्रार्थना की कि उसको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करे। सभी लोगों ने उसको विशेष भेजी है और विशेष दी भी है। कल जब फोन आया था तो परिवार के और भी लोग मौजूद थे, सभी ने उसको गुड विशेष दी, और हम चाहते हैं कि वो ईश्वर की कृपा से उसका मिशन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पूरा होगा और पूरा हो, ये मेरी कामना। तो कल शाम को बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर उस लॉन्च की वेट करेंगे आप लोग भी, पूरे देश की तरह, जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बन रहे हैं, सेकेंड इंडियन टू गो इनटू द स्पेस स्टेशन। एक अपनी तरह की प्राइड, एक अपनी तरह की खुशी लाता है ना शंभू जी, जब आप देखते हैं कि आपका बेटा इज ओनली द सेकेंड इंडियन इतने सालों बाद, 41 इयर्स बाद, जो पहले राकेश शर्मा थे, उसके बाद अब आपका बेटा जा रहा है। नहीं, कल तो बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल मतलब उत्साहित हैं इसके लिए, और इस प्रसन्नता का तो मतलब ये व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि मिशन देखने के लिए लॉन्चिंग जो होगी वो उसको देखना चाहते हैं किस तरह से कैसे क्या, क्योंकि हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, बच्चे ने तो उसमें चूँकि
ट्रेनिंग ही कर रहा, तो उसको तो पूरी नॉलेज है। और हम लोग बड़े उत्साहित हैं कि लॉन्चिंग जो है जो भी देखना चाहते हैं बड़ी अच्छी तरह जो है वो लॉन्चिंग हो, उसका हम लोग लाइव देखें और बड़ी स्क्रीन पर देखें। इसके लिए व्यवस्था सब की गई है, तो हम देखेंगे उसको, बड़ी अच्छी तरह से देखेंगे उसको। बड़ी स्क्रीन पर पूरा देश देख रहा होगा और हम अपने व्यूअर्स के लिए भी वो सब विजुअल्स लाएंगे जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, जो यंग बच्चे हैं आज आपके बेटे को देख रहे होंगे, इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं भी बड़ी होकर ऐसे बनूंगी, मैं भी बड़ा होकर ऐसे बनूंगा, उनको क्या बोलना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को तो देखो यही कहेंगे कि पेरेंट्स को जो है मेन चीज़ बच्चे पर ध्यान देना ये चाहिए कि उनको टाइम दें और उनके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे तो फिर उसकी जो है प्रॉब्लम भी उनको पता चलेगी। और बच्चे को समय देना ज़रूरी है, बल्कि सुविधाएं देना नहीं। सुविधाएं माने नहीं रखती हैं। जितना बच्चे को अगर आप समय देते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं और उसके साथ अगर मतलब एक अच्छा संबंध रखेंगे तो बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम को आपसे शेयर करेगा। और बच्चे को भी ये है कि अपना जो भी काम करता है उसे 100% करना चाहिए। उसे ये नहीं है कि मतलब आपने काम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो उसे 100% अगर देता है तो वो सक्सेस होगा, 100% सक्सेस होगा। और इसी तरह उसको मेहनत करनी चाहिए, अपना एम निर्धारित कर लेना चाहिए। चार तरफ उसको सोचना नहीं चाहिए कि चार तरफ जाना है या दो तरफ जाना है। जो अगर उसको जो भी लाइकिंग हो, उसको एक विषय को लेकर उसका पूरा उसमें मतलब पूरा अपना मेहनत करनी चाहिए, पूरी लगन से निष्ठा से करेगा तो उसको 100% सक्सेस भी मिलेगी। जी आशा जी, एक माँ होने के नाते क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को खुले पंखों से उड़ने देना चाहिए। बच्चे जो चाहते हैं, जिस लाइन में जाना चाहते हैं, उसमें ही बट नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। जिस लाइन में जाना चाहते हैं उनको जाने दें और बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, बस यही है हमारी अरदास। बच्चे अपने आप लाइन पकड़ लेंगे, समझदार बच्चे सब आजकल के हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद शंभू दयाल शुक्ला जी एंड आशा शुक्ला जी। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। सबकी प्रार्थनाएं, सबकी विशेष आप सबके साथ हैं, आपके बेटे के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस ऑन टाइम्स नाउ। Viewers, that was of course Group Captain Shubhanshu Shukla's parents speaking with us exclusively on Times Now, sharing what's going on in their heart right ahead of their son becoming the second Indian to go into the International Space Station. We'll keep getting you updates on Shubhanshu Shukla's journey ahead, but right now it's time for a short break. News and updates continue on the other side.